Hello students, myself Rakesh Misra. Now we are going to discuss about advantage of biological classification. In previous video lecture you have seen the concepts of biological classification. Classification and biological classification, as I have told you, they are two different things. But if you correlate the living being along with the classification, there will be the biological classification. So without delay time, let back in online class and discuss the important points related to biological classification. The basic important points of biological classification is, first of all, there is a need to describe the biological classification, that is concepts. The second one is the definition, and third one is advantage. But you need to mention only two topics in your copy, that is definition and advantage of biological classification. This video is based on advantage of biological classification only. But we in online class discuss the early 2 points that I have introduced related to biological classification, and later I will explain full about the biological classification and its advantage. So without delay time, let back in online class and discuss the important points related to biological classification, including advantage of biological classification. Classification, two important things is necessary. First thing, definition, and second thing, advantage. The two things are necessary. First is definition and second thing is advantage. Advantages. It means you need to clear your concept. On that basis, you can define the biological classification. First of all, you need to know what is classification. Simple idea of classification is making class. Making classification word used for those process which is actually related to some prefix. For example, if you are making the pure object from impure object, that will be the purification. Similarly, if you can magnify the very microscopic object, the whole process will be magnification. Same thing, if you are able to group or making class of any object, you have many objects at your home, at your school campus, then on that basis you are involving in making class or making group of any object, that will be the classification. I hope your concept regarding only classification is clear. If this will be added with the living being, then that terms will be biological classification. Means classification and biological classification are two related terms. Example, if you have many objects at your home, suppose that in kitchen you are visiting in your kitchen and found the many objects like the potato peels, like the vegetables, like scattered flour, like salt, oil, बहुत सारी चीजें आपके किचन में फैली हुई है. कहीं तेल है तो तेल के डब्बे में कोई जो है चाकू डाला हुआ है, कहीं सब्जी है तो सब्जी में कोई थोड़ा सा आटे का लोई उसी में डाल दिया है, गूंथ करके डो डाल दिया है, कहीं चावल है तो चावल में कोई पानी पीने वाला गिलास डाल दिया है, ठीक है, कहीं गैस है तो गैस पे जो है ला करके कोई बेलन रख दिया है. तो ये इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में है. तो आप क्या करेंगे, उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे. चाकू की जगह पे जहां सब्जी काटी जाती है वहां रख देंगे, ठीक है. फिर ऑयल का ढक्कन बंद कर देंगे. फिर क्या करेंगे, बेलन को जहां पे चौकी रखा जाता है, बेला जाता है रोटी, वहां पे रख देंगे. तो आप पूरे किचन को थोड़ी देर के बाद सिस्टमैटिक कर लेंगे, ठीक है. तो आपका एडवांटेज क्या हो गया, अब आप चाकू ढूंढेंगे तो तेल के डब्बे में नहीं मिलेगा चाकू. अब आपको चाकू कहाँ मिलेगा, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पे सब्जी काटने वाली चीजों को रखा जाता है वहां पे रख दिया. सेम थिंग्स अगर आप अपने ड्राइंग रूम में आते हैं तो आपको क्या मिलता है, तकिए के नीचे मिलता है बैट, ठीक है. फिर आप बेड उठाते हैं तो उसके नीचे मिलता है क्या, उसके नीचे मिलता है 4 पेन. फिर आप क्या करते हैं, पेन रखने वाली जहाँ पे पेन दान है, जहाँ पे पेन रखा जाता है
वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या मिला, गुड मॉर्निंग सलमान खान, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जहां पे आप पेन रखा जाता है, जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेन, वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पे मम्मी के किचन का गैस वाला लाइटर मिल रहा है। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सेम थिंग्स आपके दिमाग में अब क्या आ रहा है, अब आप सोचेंगे कि इसको हम डिस्क्रिमिनेट मैनर में यानी एक अच्छे वे में कैसे रख दें। तो आप क्या करेंगे, लाइटर को ले आके किचन में रखेंगे, चाकू को ले आकर के सब्जी काटने वाली जगह पे गुड मॉर्निंग, रेडमी गुड मॉर्निंग। फिर आप क्या करेंगे, तकिए के नीचे जो बैट रखा हुआ उसको स्पोर्ट जहाँ पे खेल वाली चीजें रखी हुई है वहां पे ला रख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है बेड के नीचे जो 4 पेन रखा हुआ उसको जहाँ पे पेन रखा जाता है, जहाँ पे चाकू या लाइटर रखा हुआ था वहां पे ला रख देंगे। तो अब आप जहां एक्सपेक्ट करेंगे वहां से चीजें मिल जाएंगी। ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा। तो ये एडवांटेज है किसी भी चीज को ग्रुप बनाने का, ठीक है। सपोज दैट आप एलपीएम में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में कहा जाए कोई कहीं बैठे तो एलकेजी का बच्चा 12 में आके बैठेगा, 12 का बच्चा एलकेजी में, एलकेजी वाली मैडम पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल तो 12 वाला बच्चा बोर होगा, 12 में आएंगे तो 12 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कोडॉन या ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, एलकेजी वाला बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। तो हमको डिस्क्रिमिनेट मैनर में चीजों को, ऑब्जेक्ट को अच्छे से रखना होता है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ऐसे ही लिविंग बीइंग के लिए भी यही चीज फॉलो होता है। अगर हम लिविंग बीइंग का क्लास बना दे, ग्रुप बना दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी हैंड रेज करके बताओ भाई। बाकी लोग वेरी गुड वेरी गुड। देखो सारी चीजें बहुत इजी है, बस हम उस चीज को डिफिनीशन के चक्कर में गंवा देते हैं। आप किसी भी चीज को डिफिनीशन के चक्कर में मत भागिए, डिफिनीशन के पीछे, डिफिनीशन होता नहीं है, बन जाता है ऑटोमेटिक। जैसे मैंने अभी बोला है कि 2 टर्म इसमें जरूरी है, डिफिनीशन एंड एडवांटेज। डिफिनीशन को मैंने कल थोड़ा बहुत बता दिया था, कल के लेक्चर में सारी चीजें हो गई थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज। सो पुट हेडिंग रिलेटेड टू द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सलमान खान, इफ यू आर required to ask any question then you can frequently type। मैंने क्या बोला था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे वर्बल नहीं पूछ सकते हैं, मुंह से नहीं कोई बोल सकता, मैं किसी को ऑन नहीं करूंगा। आप क्या करें, क्वेश्चन को टाइप करके अपने पास कहीं रखे रहिए और अगले दिन चैट बॉक्स में वही पेस्ट कर दीजिए, मेरे स्क्रीन पे वो फ्रेश होगा, हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है ना? और ये सेम वीडियो जो ऑनलाइन क्लास के वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। चलो आते हैं, हेडिंग डालो कॉपी में, एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, और मैं एक बात और बोल रहा हूँ, नोट्स वगैरह आप वीडियो के साथ बनाते रहिएगा। अलग से नोट्स आपको इकट्ठे मिल जाएगा, लेकिन नोट्स इसके साथ बनाते रहेंगे तो आपको अलग से नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग डाल दियो तो बताओ, एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Advantages of biological classification. Raise your hand if you have put the heading advantages of biology। सर ब्लैक पेन से लिखूं या फिर ब्लू पेन से? आप हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक। देखो ये बताने वाली चीज, 11th में चले गए, आपके पास कुल मिला करके अगर हम 10 तक का एक्सपीरियंस जोड़ें तो 10 ईयर्स ये पढ़ाई लिखाई का हो गया। एलकेजी यूकेजी जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, 2 साल और 12 साल आप पढ़ ले। फिर भी आप पूछ रहे हैं सर हेडिंग ब्लैक पेन से डालें कि ब्लू पेन से? आपको जैसे मन करे वैसे लिखिए। बायोलॉजी में कोई आपके लिए वो नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे लिखिए, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है। आप नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम आपको देना है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए पहले से, नोट्स में वो सारे पॉइंट्स लिखते रहिए, अलग से कोई कॉपी नहीं बनाना है, एक ही कॉपी मोटी सी अच्छी सी, उसको आप जितना अच्छा से लिखेंगे, जितना अच्छा बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, सब लोगों को ध्यान से सुनना है, रेडमी हैंड डाउन कर लो। एक मैं आइडिया आपको दे रहा हूं, जब आप होमवर्क लिखे तो होमवर्क लिखने के बाद क्वेश्चन जो है ऑड पेन से, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख देना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है और पूरे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से घेर देना है ताकि वो
जब भी आप पढ़े तो उस पर आप फोकस कर सके, ठीक है, क्योंकि होमवर्क हमेशा क्वेश्चन आंसर के ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यू राइट द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये लिख लिए हो तो बोलो, आगे हम बताते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेडिंग हो गई हो तो बोलो। चलो आते हैं, लिखो कॉपी में पॉइंट वन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिख लो। ये सर वेरी गुड लिख रहे हैं, ठीक है। लिखो कॉपी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट लिखो कॉपी में, टू मेक स्टडी इजियर, टू मेक स्टडी easier, to make study easier. Listen carefully. If you are having many lesson in your single copy, suppose that chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 1 in alphabet manner, suppose that chapter 1 is cell, chapter 2 is tissue, chapter 3 is organ, chapter 4 is organ system, chapter 5 is the body, and chapter 6 is human population, and chapter 7 is the world geography or world history, but it will be in indiscriminate manner. Chapter 1 is world history, chapter 2 is human body, chapter 3 is tissue, and chapter 4 is organ system, chapter 5 is cell. तो आपको पढ़ने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उसको आपका कॉन्सेप्ट कितने दिन में क्लियर होगा? सीधी सी बात है कि कॉन्सेप्ट आपको जो एक दिन में क्लियर होना था वो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि हम इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में पढ़ाई कर रहे हैं। अब सीक्वेंस में जब पढ़ना है तो चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना है। हाँ वेरी गुड। चलो तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सब लोग सुनोगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टू मेक स्टडी इजियर, यानी स्टडी को ये बहुत आसान बना देता है। किसी भी लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन हम कर देंगे तो स्टडी, जैसे आप एक साइंटिस्ट बन गए, बायोलॉजिस्ट बन गए, ठीक है, अगर आपको किसी लिविंग बीइंग की स्टडी करनी है तो आप जब जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम ऑर्थ्रोपोडा से शुरू करें कि एनीलिडा से, क्योंकि रेंगने वाले लिविंग बीइंग रेप्टाइल्स हो जाएंगे, तैरने वाले में भी कई कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। फिशेज हैं, मैमल्स भी तैरते हैं, याद होगा आपको, मैमल्स भी तैरता है, ब्लू व्हेल मैमल्स है वो भी तैरता है, तो आप कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रुप बना देंगे कि जिनके पास बैकबोन होगा वो वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है, ठीक है, तो उनकी अलग ग्रुप बन जाएगी। क्रीपर्स जो रेंगने वाले हैं, रेप्टाइल्स अलग है, ऑर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स की ग्रुप हो जाएंगे, एनीलिड्स और उससे रिलेटेड जो भी लिविंग बीइंग है वो फाइलम एनीलिडा में आ जाएंगे, शेल है तो मोलस्का में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी स्टडी आसान हो जाएगी, हम जिस किसी भी लिविंग बीइंग की स्टडी करने जाएंगे वो हमारे लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टडी को इजी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉपी में, सेकेंड पॉइंट, टू क्लासिफाई द लिविंग बीइंग, to classify the living being. Listen, ये तो तुमने एडवांटेज लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से और ये एडवांटेज मिल गया लिविंग बीइंग को। लिविंग बीइंग को भी एडवांटेज मिल गया कि उसका एक प्रॉपर जो है क्लास मिल गया, एक प्रॉपर ग्रुप मिल गया, ठीक है। जैसे पूरे इंडिया को कोलैप्स कर दो तो तुम किस गांव के होगे तो कहोगे हम इंडिया के हैं, रॉन्ग हो जाएगा ना। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें ब्लॉक तमाम आते हैं, उसमें तमाम जो है हमारे विलेज आते हैं, तो ये छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। सबको कोऑर्डिनेट करके सबको ऑपरेट करना, सबको मैनेज करना इजियर हो जाता है जब हम किसी को ग्रुप बनाते हैं। अगर हम सबको कोलैप्स कर देंगे तो किसी को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, किसी के पास जरूरी चीजें नहीं पहुंच पाएंगे, किसी का हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो with this point I hope it is clear, this point is effective for the organisms and this is effective for the human being. It means what make study, the study of living being make easier. And how do living being get benefited by the biological classification? Because of they find their exact group, ठीक है। Now next, to provide identity of living being, लिखते जाओ सब, to provide identity of living being, to provide the identity of living being. Listen carefully, if you are having many group of organisms and each group you have assigned the specific characteristics. For example,
if you have a group, suppose that if you have a group and you have assigned some characteristics for this group, अगर आपने एक ग्रुप बना लिया ऐसे रैंडम और आप उस ग्रुप के लिए कुछ कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, जैसे क्या लिख रहे हैं, बैकबोन होना चाहिए इस ग्रुप में प्लेस होने के लिए। दूसरा कैरेक्टर्स क्या लिख रहे हैं, इसमें ये लिख रहे हैं कि ईयर होना चाहिए, ईयर पीना, ठीक है, ईयर पीना होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। और क्या होना चाहिए, विविपेरस एनिमल होना चाहिए, यानी कि एनिमल दैट गिव बर्थ इज नोन एज विविपेरस, एनिमल गिव बर्थ गिव ले एग इज नोन एज ओविपेरस। तो आपने क्राइटेरिया बना लिया, क्या आपने क्राइटेरिया बना लिया कि ये विविपेरस होना चाहिए, विविपेरस। अब आपके पास एक जो है एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, और दूसरा क्या है, बर्ड है। तो बर्ड अपना जगह इसमें नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि ये क्या है, मैमल नहीं है और ओविपेरस है। मैंने क्राइटेरिया जो बनाया है इस ग्रुप में वही एंट्री लेगा जो ये 4 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो। क्या क्या होना चाहिए, बैकबोन होना चाहिए, ईयर पीना होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, विविपेरस। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग को मिल रहे हैं, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इसमें जगह मिल जाएगा। So with the help of biological classification, animal or any other living being find their exact identity। इससे पहले आपको नहीं मालूम था, सपोज दैट हम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा को हटा दें तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि हम किस फाइलम में होंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि जितने भी नोटोकॉर्ड होल्डर है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप के एनिमल्स हैं, तो वो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है क्लासिफिकेशन से। सो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यू प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग बीइंग। ये तीनों पॉइंट्स कितने लोगों को क्लियर हो गया भाई? 3 पॉइंट्स मैंने अभी समझाया है, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने लोगों को क्लियर? वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट। यस सर, वेरी गुड। 4th लिखो कॉपी में, टू रिवील the relationship between living organism, to reveal the relationship between living organism। हो गया, to reveal the relationship between living organism। हैंड रेज करके बताओ, ये लिख लिए कॉपी में। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? रिवील मीन्स होता है डिस्क्लोज, कहीं लिख लो दाएं बाएं। रिवील मीन्स क्या होता है? डिस्क्लोज। वेरी गुड, डिस्क्लोज। जब हम किसी का ग्रुप बना देते हैं तो 2 नियरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप को पास पास रखते हैं। जैसे आप जब पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में पोरीफेरा पढ़ा होगा, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा होगा, फिर क्या पढ़ा होगा? फिर पढ़ा होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केहेल्मिन्थेस। ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े होंगे। पोरीफेरा के तुरंत बाद कॉर्डेटा क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, मोनेरा प्रोटिस्टा, वो तो किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने हम एनिमल किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। एनिमल किंगडम में फाइलम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो आप जब एनिमल किंगडम में फाइलम की स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले पोरीफेरा पढ़ते हैं, उसके बाद सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं। उसके तुरंत बाद कोई बताएगा क्या कि कॉर्डेटा क्यों नहीं पढ़ते हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा के सबसे पहले पोरीफेरा के तुरंत बाद हम कॉर्डेटा क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिकॉज कॉर्डेटा एंड पोरीफेरा शेयर द वेरी लार्ज डिफरेंस। लिसन केयरफुली, कॉर्डेटा एंड पोरीफेरा, वही तो बता रहे हैं सलमान खान, कॉर्डेटा एंड porifera share the very large difference among them, while porifera and coelenterata share the very common characteristics among them. So the 2 groups of living beings that share very common characteristics always put together, and they actually show the close relationship. That will be the 4th point. Is it clear? That will be the 4th point. It means with the help of biological classification you can disclose what are the relationship between 2 group of living beings. हो जाए तो बताना। ये पॉइंट्स लिख लिए हो 4th वाला?
हैंड रेज करके बताओ। चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू रीअरेंज द लिविंग बीइंग। लिखो कॉपी में, टू रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग। सर लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ाएंगे, लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ा रहे हैं हम, फर्स्ट लेसन ही पढ़ा रहे हैं। लिसन, फर्स्ट लेसन में अभी क्या क्या पॉइंट हुआ है उसको भी मैं बता दे रहा हूं, कोई पॉइंट अभी नहीं हुआ। बायोडाइवर्सिटी बताए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताए, अब एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो ये लिख लो कॉपी में, टू रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग, द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग, टू रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग। हो जाए तो बताना भाई, टू रीअरेंज द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग। चलो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो